Hello students, very good morning. Today's topic is light, 10th ICC board, 10th CBSE board and 11th state board physics. Now what is refraction of light? Light is the form of energy which produces sensation of sight. जो दृष्टि का आभास करा देता है उसको लाइट बोलते हैं. लाइट का एक फिनोमेना है that is called refraction of light. It is optical phenomena. When the light travels through a medium, that medium is called optical medium. Optical medium allows the light pass through it. When light travels from one medium, optical medium, to another optical medium, it is a optically rarer medium, it is optically denser medium. When light travels from rarer medium to denser medium, its bending takes place. The bending of light towards normal. Normal is an imaginary line, drawn perpendicular to surface. Surface separates two media. This is a refracting surface. It separates two media. One is a rarer medium, another one is a denser medium. When light travels from one medium to another medium, its bending takes place. This phenomena of light is known as refraction of light. When light travels from optically rarer medium to denser medium, its velocity decreases. Due to decrease in velocity, it bends towards normal to achieve shortest path. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal because velocity increases. When light travels from one medium to another medium, its velocity changes, its wavelength changes, but frequency remains constant. When velocity of light in the air is 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per second in the air when it enters in water. It enters in water, its velocity decreases to 2 lakh kilometer per second. What is the refractive index of a medium, or what is the change in frequency and wavelength? Wavelength may be given 4800 angstrom. 4800 angstrom is the wavelength given in air. They will find what is the wavelength in water and what is the frequency in water. Here the frequency remains constant. Frequency is the same throughout the process, throughout the phenomena. Here velocity is equal to frequency into wavelength. Now V1 upon V2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. Here the frequency is same, so this frequency will be cut out, cancelled. You will get V1 upon V2 is equal to so and so. You can put air, you can put water, and you can put water. Now here the it is in lakh kilometer per second, so you can convert also without conversion also. This is a 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is a 2 into 10 raised to power 2.5. Take 2 1 10 raised to power 8 meter per second. If you are not converting value, it will be okay because both are having the same unit. If unit is different, then you need to change. Now you put the value 3 upon 2, this will be cancelled out. You will get wavelength in air 4800 into 10 raised to power minus 10, because 10 raised to power minus 10 you are converted into meter. Now this is the wavelength in water. Now this is 1.5. You don't do 1.5. It will be down, it will be up, and this will be top. That is lambda W equals to 4800 into 10 raised to power minus 10 into 2 upon 3. Okay. Now you can do like this कि इसको solve करा तो भी अगर refractive index पूछा गया what is the refractive index, that time you can use the formula mu is equal to velocity in air divided by velocity in water. Velocity in air divided by velocity in water. Velocity in air 3 upon 2, that will be 1.5.
1.5 is the refractive index of not water, it is glass. It should be glass. Now here it will be glass. It will be glass. Now you can use glass. It is a glass. Okay. Because in water the refractive index is 1.3 and now here is the refractive index of 1.5. When light travels from air to glass, its refractive index found to be 1.5. Now, what is a refractive index? Refractive index is an intrinsic property of a material. What is the intrinsic property? It does not depend upon the matter. If you have a glass of water, you have bucket full water, you have a big tank full water, refractive index will be same, 1.33. Density will be 1.1 gram per centimeter cube. These are the intrinsic property, not depending upon the amount of material used. So if glass is small, refractive index 1.5, bigger glass and bigger glass, refractive index is 1.5. So refractive index is a constant of a medium, and refractive index gives you the idea about how much light velocity can be decreased or velocity of light can be bent, light ray can be bent. The light bending capability of a medium is called refractive index. Now refractive index of medium is the ratio of velocity of light in air to the velocity of light in medium, velocity of light in one medium, wavelength of light in one medium to the wavelength of light in another medium. This ratio is called refractive index. So refractive index is the property of a material which bends the light or which decreases the velocity of light. So it depends upon the optically denser. If medium is optically denser, it will be having great property to bend the light. In case of water, density of water is 1 gram per centimeter cube, and alcohol that will be 0.75 or 0.78 gram per centimeter cube. So here, even though density of alcohol is low, but in case of optically, it was observed optically denser medium is alcohol. Alcohol is more optically denser as compared to water because it has great tendency to decrease the velocity. So, refractive index of alcohol is greater, maybe 1.37, and refractive index of water is 1.33. So, refractive index of water is lesser as compared to the alcohol, ethanol, maybe alcohol. So, alcohol has optically denser medium as compared to the water. But what is the what is the refractive index? Refractive index is a characteristic property or a intrinsic property of a material. It has a measure. It is a measure of light bending capability of medium, or it is a measure of decrease of velocity of the light in a medium. So if alcohol is more optically denser, so it decreases velocity in a greater extent, it velocity in a lesser extent as compared to the alcohol. So if one medium is optically denser, the velocity will be decreases in a greater extent. So we have formula, mu is equal to refractive index is equal to velocity of light in one medium to the velocity of light in another medium. Now what is absolute refractive index? Absolute refractive index means when light travels from air to any medium. If light coming from air, that will be the absolute refractive index. Now if it is air and it is water. Now, one more line. It will be air and it will be water, and this is the normal. And again, another medium. Take another medium. Take another medium. Air and glass. Okay, air and glass. So these are the different mediums. When light travels from air to water, air to water. Okay, so you can write refractive index of air
with respect to water. Means if absolute refractive index, you should write A to the left and water to the right. Now put arrow, air to water, air to water. If right side you have seen W means refractive index of water with respect to air, refractive index of water with respect to air. Similarly, refractive index of glass with respect to air, with respect to air. These two are the absolute refractive index. What is absolute refractive index? When any medium is seen through air. When the air is a main thing, if light travels from air to any medium, when light travels from air to any medium, we can say it is a absolute refractive index. See, when light travels from air to water, it will be absolute refractive index. If light travels from air to glass, in case of water, the refracted angle of water and refractive angle of glass, so refractive index of water will be greater than glass. तो ग्लास में वेलोसिटी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू द वाटर. सो जब किसी भी मीडियम को हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे आप नदी के पास गए, आप पानी को देख रहे हो, तो आपके और नदी के बीच में क्या है? एयर है. तो जब एयर से पानी में लाइट जाएगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं आप, तो स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होते, तो स्विमिंग पूल के पानी को आप देख रहे हो. कहाँ से देख रहे हो? एयर से देख रहे हो. यानी आपके और पानी के बीच में क्या है? एयर है. तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यही अगर आप पानी के अंदर घुस जाओ और फिर हवा को बाहर देखो तो आपके बीच में क्या है? पानी आ गया. दैट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जब एयर से वाटर में जाएगी लाइट तो ऐसा बना देंगे, एयर से ग्लास में जाएगी तो ऐसा बना देंगे. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट. अब देखो क्या करना कि ये जो है ना, इसको ऐसा घुमा देना, ऐसा घुमा देना, तो ए ऊपर चले आएगा और डब्ल्यू नीचे चले आएगा. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहती है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज velocity of light in air to the velocity of light in water, velocity of light in air to the velocity of light in glass. समझ गया? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो पहला मीडियम अगर एयर हो तो वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि आप बाहर से लाइट को देख रहे हो. अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन तो ये आता है कि एयर में वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड थी और ग्लास में एक मीडियम है उसके अंदर वेलोसिटी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो वो मीडियम कौन सा है? तो आप वैल्यू निकालोगे 1.5, क्योंकि 3/2 करोगे आंसर 1.5 आ जाएगा. तो आप लिख सकते हो दैट मीडियम इज ग्लास. अब वो पूछेगा कि जो ग्लास है इसका कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो आपको बोलना पड़ेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, चलो एयर टू ग्लास ले लो, एयर टू ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाउंड टू बी 1.5. जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलता है? 1.5. अगर लाइट ग्लास टू एयर जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऐसा पूछा है. तो आपको मालूम है कि ए लेफ्ट में और राइट में जी है, तो आप लिख दो ए म्यू जी. क्या लिख दोगे? ए म्यू जी, एयर टू ग्लास. ये क्या दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है. अब दूसरा क्या दिया हुआ है? जी म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. मतलब आप ग्लास में घुस गए और बाहर देख रहे हो, समझ गए? तो ये हो जाएगा ग्लास टू एयर, तो ये हो जाता है 1/g ए म्यू जी. क्या होता है?
1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 3/2 था तो 2/3, आंसर विल बी 2/3। अब ये फॉर्मूला अपन निकालना सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ जी म्यू ए इज ऑलवेज यूनिटी। क्या आंसर होता है? यूनिटी। ये प्रूफ करेंगे अपन। तो अपन क्या देखेंगे कि लाइट जो होती है वो ये नॉर्मल है, लाइट जो होती है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास जा रही है। अब हम मीडियम भी ले सकते हैं, अपन ग्लास ले रहे हैं, तो ये बैंड हो गई, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हो गया इंसिडेंट। आपने एरो बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, एरो बनाना भूल गए खेल खत्म। आपको एरो तो जरूर बनाना है, ये एरो जरूर बनाना है आपको, भले ऊपर नीचे दो एरो नहीं बना पाओ चलेगा, लेकिन कोशिश करना दोनों तरफ एरो रहे, यानी यहाँ पे भी एरो रहे और यहाँ पे भी एरो रहे, ऐसा जरूरी रखना। तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो हमने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है वो राइट में लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में है वो लेफ्ट में लिखते हैं। तो लाइट कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास जा रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब दूसरा केस देखो, जब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, तो उल्टा केस है। अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो अब जहां से जाती है वो लेफ्ट में लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, अब इसको भी ऐसा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी इन एयर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी जी इंटू वी जी अपॉन वी ए करेंगे, आंसर कट जाएगा, देखो कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो हमेशा याद रखना, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एयर से ग्लास में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और ग्लास से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो उल्टा कर देना, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 है, तो ये पूछा है तो इसको नीचे भेज देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब लाइट एयर से किसी मीडियम में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करती है अदर देन एयर, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंसेप्ट को और लेते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब एक लॉ है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके टर्म्स में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। कैसे आएगा देखो, अभी लाइट क्या कर रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसको आई मान लिया, इसको आर मान लिया। अब उतने ही एंगल से अपन भेज रहे हैं, अब देखो उल्टा है, अब लाइट यू जा रही है, यू जा रही है, तो ये हो गया आर और ये हो गया आई। तो अब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई, यानी कि ये जो उल्टा हो गया क्या, हाँ। अभी देखो क्या होता है कि जो हमारा, ये उल्टा कर दो, ये ऐसा मत बनाओ, यहाँ से लो, तो जितना एंगल आर था वही उल्टा हो जाएगा, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर से 1 आ जाएगा। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू एक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग सब क्वेश्चंस को कर पाते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ ग्लास लैब एक कंसेप्ट है, ग्लास लैब का करवाता हूँ। देखो इधर, अगर ये आपका ग्लास है, ये ग्लास ले लिया अपन ने,
ये ग्लास ले लो आप, इसके ऊपर अपन ले लेते वाटर, क्या ले लेते, वाटर ले लेते हैं, है ना, इसके ऊपर ले लेते वाटर, ये सब क्या है, वाटर है, और ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, और इसके ऊपर ले लेते अपन एयर, है ना, ये क्या है, एयर है, ये वाटर है, और ये ग्लास है, समझिए। अब अपन क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। अब ये प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, समझ गए। इतना याद रखो, एयर टू वाटर जा रही है, ये लाइट, वाटर टू ग्लास जा रही है, और ग्लास टू एयर। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, देखो ऐसे नॉर्मल ड्रॉन करेंगे। ये आपने, रुको ये पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ये नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉन करा आपने, ये नॉर्मल ड्रॉन करा अपन ने, ये आपका नॉर्मल ड्रॉन कर दिया आपने, है ना। अब यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, ये मिटा दो, है ना, इतना भी रखा तो चलता है। ये नॉर्मल ड्रॉन कर दिया, अब एक और नॉर्मल ड्रॉन करेंगे बाद में। पहले अपन क्या करते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। अब इधर देखो, लाइट यहाँ से आएगी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब देखो ये एंगल अपन ने लिया इतना, ये एंगल नोट करके रखना बुक के अंदर। ये एंगल मान लो रखा है आपने 70 एंगल रखा हुआ, या जो भी डिग्री ले लिया है, इसको बोल दिया अपन ने I1। क्या बोल देंगे, I1। अब क्या करेंगे कि ये जो एंगल, ये इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो ऐसा रहना चाहिए, है ना, ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो रहेगा नहीं, ये थोड़ा सा दब जाएगा। तो ये जाएगा आपका, ये गया आपका ये पॉइंट पे, यानी इसको मिटा दो। अब ये पॉइंट पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉन करो, फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, ये पॉइंट पे एक और नॉर्मल ड्रॉन करेंगे। अब ये नॉर्मल जब ड्रॉन होगी, ये एक और नॉर्मल ड्रॉन कर लेंगे, एक और नॉर्मल ड्रॉन कर ली अपन ने, है ना, एक और नॉर्मल ड्रॉन कर ली। अब अपन क्या करेंगे, फिर से लाइट को बेंड करेंगे। अब देखो वाटर में जो एंगल होगा ये कहलाएगा R1। क्या कहलाएगा, R1। तो ये एंगल से छोटा एंगल ग्लास में रहेगा, क्योंकि ऑप्टिकली मोर डेंसर, ग्लास क्या है, ऑप्टिकली मोर डेंसर है, तो ये एंगल और कम हो जाएगा। इसका पाथ क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, देखो ये पाथ होना चाहिए था इसका, लेकिन ये पाथ ना होकर और दब जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इतना, समझिए। चलो थोड़ा अंदर ले लेते हैं, ये इतना दब जाएगा, यानी ये एंगल कहलाएगा R2, ये कहलाएगा R2, और ये कहलाएगा R3। तो R1 R2 R3 एंगल हो गया। अब फिर से यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, है ना, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉन करेंगे। अब ये नॉर्मल ड्रॉन करा अपन ने, है ना, फिर से नॉर्मल ड्रॉन करा। जब फिर से नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ये कौन सा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक और नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो इसका जो पाथ है वो तो ऐसे जाना चाहिए था, इसका जो पाथ है वो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना जाकर वो उसी एंगल, देखो ये एंगल कितना था ना, उतने एंगल से यहाँ से जाएगा, और ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, समझ गया। तो ऊपर से 17 आया था, 70 से आएगा, लेकिन हम लोग इसको मान लेंगे R1 R2 R3, और इसको मान लेंगे R4। क्या मान लेंगे, R4, और ये कहलाएगा I2। क्या कहलाएगा, I2, क्योंकि एक तरीके से ये भी एयर में है ना, ये भी वेलोसिटी इन एयर है, और ये भी वेलोसिटी इन एयर है, और ये वेलोसिटी इन वाटर है, और ये वेलोसिटी इन ग्लास है ना, वेलोसिटी इन ग्लास है। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में भी अपन कर सकते थे, और साइन एंगल के टर्म में भी इसको कर सकते हैं।
तो अपन को प्रूफ क्या करना है कि एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहले क्या आएगी, लाइट आएगी जितने बड़े एंगल से आएगी ना, क्योंकि एयर में है, ये एयर है, ये वाटर है, तो वाटर में लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी, लेकिन ये उतनी बेंड नहीं होगी जितनी अंदर बेंड होगी यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है। ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगल बना के आएगी, यहाँ एंगल कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, फिर से बड़ा एंगल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 बिकॉज वेलोसिटी इन एयर, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लाइट काय में, एयर में। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। फर्क इतना है, ये अंदर आते वक्त है और ये बाहर निकलते वक्त है। तो जितने एंगल से वो अंदर घुसेगी उतने ही एंगल से वो बाहर निकलेगी। आप कोई सा भी मीडियम ले लो, समझ गए। अब ये देखो, ये Z बन रहा है, देखो ऐसा Z बन रहा है, देखो ऐसा Z बन रहा है, ये देखो ऐसा Z बन रहा है। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या बोलेंगे, R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4, ये सब क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है ना। अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। R1 इज इक्वल टू R2, तो क्या बोलेंगे अपन, ये सब सेम है। R1 इज इक्वल टू R2 एंड R3 इज इक्वल टू R4, ये सब आपस में बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। समझिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। I1 I2 के बराबर है, क्योंकि लाइट जो होती है हमेशा एयर से मीडियम में जा रही है और मीडियम से एयर में आएगी, तो वेलोसिटी सेम रहने के कारण उसके एंगल बिल्कुल सेम होंगे। तो एक तो ये एंगल याद रखो, ये एंगल कंडीशन याद रखो। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ये पोर्शन दिख रहा है तुमको क्लियर, तो वहां लिखते हैं अपन। चलो, ये पोर्शन दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ए म्यू डब्ल्यू, देखो एयर टू वाटर जा रही है लाइट, तो एयर टू वाटर इज इक्वल टू साइन, क्या लिखेंगे, I1 अपॉन साइन R1, है ना। ये R1 ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। आपको चाहो तो बीच में भी एक आध एरो बना सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। दूसरा निकालेंगे अपन, ये इक्वेशन हो गई 1। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, वाटर टू ग्लास, क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड, R2 अपॉन साइन R3 क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल। अब लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अब कहाँ लाइट जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है, इसलिए ग्लास टू एयर, ये हो जाएगा साइन R4 अपॉन साइन I2, है ना। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R3 इंटू साइन R4 अपॉन साइन I2, है ना। अब आप देखो यहां पर दिया हुआ ना, I1 और I2 बराबर है, तो ये एंगल बराबर है, कट जाएंगे। देखो R1 R2 के बराबर है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये तीनों एंगल का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ये प्रूफ हो गया। लेकिन आते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, हमेशा आपको ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पर ग्लास है तो हो सकता है ऑयल भी दे दें वो लोग, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका न्यूमेरिकल कैसे रहता है मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज गिवन, क्या दे देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज गिवन। मान लो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया ऑयल का
ऑयल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ए म्यू ओ दिया हुआ है 3/5, क्या दिया हुआ है 3/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये मिटा देता हूँ, चलो एक बार इसको समझा देता हूँ फिर से। लाइट जब एयर से वाटर में जाती है तो बैंड होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बैंड होगी, ये ज़्यादा बैंड होगी। ये जो ये एंगल है ये ज़्यादा बैंड हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल से ज़्यादा कम एंगल ये रहेगा। फिर जब बाहर निकलेगी तो एंगल वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये दिस इज अ पाथ रे। अगर हम यहाँ से लाइट को छोड़ेंगे ना तो ये ऐसे ही पाथ अचीव करेगा, जिस पाथ से वो आता है उस पाथ से वो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल आता है कि वो न्यूमेरिकल आता है, कैसा न्यूमेरिकल आता है, देखो न्यूमेरिकल आता है कि न्यूमेरिकल आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमको चीज समझ में आए। मान लो एक स्विमिंग पूल है जो ऑयल से भरा हुआ है। क्या स्विमिंग पूल है, ये ऑयल भरा हुआ है, ऑयल है ये ऑयल भरा हुआ है और लाइट यहां से आ रही है ऑयल में। लेकिन वो पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, समझ गए, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मीडियम ले लेते हैं। अब अलग अलग मीडियम लेते हैं, देखो जरा। अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज गिवन, क्या दिया हुआ है 3/5, क्या दिया हुआ है 3/5। अब एब्सोल्यूट दिया है, इसका मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट, कहाँ से कहाँ जा रही है म्यू, और कहाँ से कहाँ जा रही है एयर टू ऑयल जा रही है, लाइट एयर टू ऑयल जा रही है, वो है 3/5। अब बोलेगा एब्सोल्यूट एयर टू ऑयल दिया हुआ है। अब दूसरा बोलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या बोलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, वो भी ए म्यू जी, ये दिया है 3/2 दिया हुआ है। एक काम करते हैं उसको 4/5 ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, वो ऑयल का दिया हुआ है और ग्लास का दिया हुआ है। अब वो बोलता है एक आदमी रहता है, वो ग्लास को लेके ऑयल के टैंक में घुस जाता है, ऑयल के टैंक में बैठ गया। अब वो ग्लास को देखता है टैंक के अंदर बैठ के, तो उसको क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो अपन देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काय ऑयल में देख रहा है, काय का देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, यानी कि ऑयल से ग्लास में लाइट जा रही है, ऑयल से ग्लास में लाइट जा रही है। ऐसा अगर क्वेश्चन आया है तो हम करेंगे कैसे, फॉर्मूला यूज करना ए म्यू। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, भाड़ में या फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी हमने वेलोसिटी का क्वेश्चन किया था तो क्या लिखा था, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, अगर ये वेलोसिटी का न्यूमेरिकल होता तो हम इसको ऐसे घुमाते, तो ये क्या हो जाता वी ए अपॉन वी ओ अपॉन वी जी हो जाता। क्या हो जाता वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सेम फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए भी होता, वी लैम्डा ओ अपॉन लैम्डा जी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में पूछे तो उल्टा करना। अभी अपन क्या कर रहे थे, इसको ऐसे घुमा रहे थे ना, अब ऐसे घुमा देना, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, अब ऊपर ग्लास वाला पोर्शन चले आएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू ओ, यानी एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा, वहां पे ऐसा नहीं था, ये ए वाला पोर्शन जरूर रहेगा, एब्सोल्यूट ग्लास टू द एब्सोल्यूट ऑयल, ऑयल को नीचे रखेंगे। अब ग्लास का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, ऑयल का फॉर्मूला ये था, तो अपन क्या करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5 करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये जाएगा 5 3 15 डिवाइड बाई 4 2 8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल क्या निकला 15/8। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तुम्हें याद रखना है कि एक आदमी पानी के अंदर घुस गया है, ऑयल के अंदर घुस गया और वो ग्लास को देख रहा है ऐसे, अब बीच में क्या है ऑयल है, तो लाइट कहाँ से जा रही है ऑयल टू ग्लास में जा रही है, तो ऑयल टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, लाइट बेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या वेलोसिटी कितना वो डिक्रीज कर सकता है
वो प्रॉपर्टी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर जो ज्यादा रहेगा उसी के अंदर वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी। वाटर और अल्कोहल के केस में थोड़ा अलग केस है, ध्यान रखना। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिंदास रहो, मस्त रहो।